Farmers continue to be on warpath over the centre's farm laws. Defiant farmers rejected the centre's appeal to move to Burari ground and continue to protest from Delhi borders. The centre is ready to have talks, but ground remains tense, with farmers in no mood to relent unless the government comes down to agreeing for unconditional talks and dialogues with those farmers. Let's take a listen to this comprehensive report. भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। कब तक दुखी किसान रहेगा? Home Minister Amit Shah urged farmers to join talks, but has also put a precondition for protesters to clear highway first. मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। Farmer unions held a meeting to discuss Amit Shah's appeal for discussion, but rejected the precondition to shift their protest site to government-designated spot in Delhi's Burari area. बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ਅਸੀਂ पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। Earlier on Sunday, major drama unfolded at Delhi-Ghaziabad and Singhu border. You can see again there is tension between the forces and the farmers who are protesting. They are trying to go inside the national capital, that is in Delhi, but the police is not allowing. First layer of barricade has been broken by the protesters. Unprecedented pictures these, right at the national highway that connects Punjab, Haryana to Delhi, and you can see that this is not a protest ground, this is not Jantar Mantar. As far as you can look, there are trucks, tractors, crowds, people and a lot of sloganeering. Amid the 4-day face-off in capital, Prime Minister Narendra Modi highlighted the advantages of the centre's new farm laws in his Mann Ki Baat address. काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। During his visit to Hyderabad, Amit Shah reiterated and echoed support for farmers. Agriculture Minister Narendra Tomar called for right environment for talks and assured that MSP will continue. मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है, वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। कृषि सुधार कानूनों का MSP से कोई लेना देना नहीं। MSP पहले भी चालू थी, अभी भी MSP पर खरीद हुई है और आने वाले कल में भी वो खरीद होती रहेगी। But the Congress and Aam Aadmi Party slammed the centre for not engaging farmers for dialogue. अमित शाह जी, सत्ता का अहंकार क्या आपके सर चढ़कर बोल रहा है? अगर आप 1200 किलोमीटर हैदराबाद जनसभा को संबोधित करने के लिए जा सकते हैं, तो 15 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत के लिए क्यों नहीं? Farmers protesting against the farm laws are staying out at the Tikri border amid police deployment. Security has been beefed up at the Singhu border, and the situation remains tense at the Delhi-Ghaziabad border too. With Mosme Singh, Munish Pandey, Arvind Oja and Himanshu Mishra in Delhi, Bureau Report, India Today. Now, earlier in the evening, tensions were witnessed at the Ghazipur border. Protesting farmers tried crossing the barricade, but the situation normalized after farm leaders there pacified the crowds. Munish Pandey was reporting live at the spot at that point in time. Here's what he found. किसान और पुलिस एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो बॉर्डर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करके बॉर्डर के अंदर जाना चाहते हैं। बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं, सामने पुलिस है, और ये जो किसान है थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं इस दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर। हाथों में उनके डंडे हैं और वो
बॉर्डर के अंदर यानी दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण है। कुछ जो बैरिकेड्स हैं उसको तोड़ दिए गए हैं। हालांकि ये पहले लेवल की बैरिकेडिंग है, लेकिन अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देख पाए तो यहाँ पर बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और बैरिकेड्स तोड़कर यहाँ पर जो किसान हैं वो अब बैरिकेड्स के ऊपर खड़े हो गए हैं। कोशिश उनकी यही है कि बॉर्डर के अंदर चले जाएं, दिल्ली के अंदर चले जाएं, लेकिन पुलिस जो है वो भी सामने से तैनात है। अगर मेरी बाईं तरफ देखें तो एक और लेयर है बैरिकेडिंग की और वहां पर भी पुलिस वाले तैनात हैं। इसके पीछे अगर आप देख सकें तो हजारों की संख्या में यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अगर वो इस बैरिकेडिंग को तोड़ने में सफल होते हैं तो वो दिल्ली के अंदर घुस जाएंगे। तो एक तरह से स्थिति फिर से तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है। तीसरी बार ऐसा है पूरे दिन में जबकि इस बैरिकेड्स को तोड़ा गया है। पुलिस ने साफ तौर पे उनसे कह दिया है कि जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा नहीं तब तक उनको सिर्फ बुराड़ी जाने की इजाजत है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो अड़े हुए हैं कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे, वो उसी जगह पर जाएंगे जहां से वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें, क्योंकि उनका जो पूरा प्रदर्शन है वो सरकार के उन नए बिल के खिलाफ है जो कि किसानों के मुताबिक किसान विरोधी है। कैमरामैन वकार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.